بجٹ پر وزارت خزانہ اور IMF وفد نے ملاقات میں اہداف اور مذاکرات کا دائرہ کار طے کر لیا ہے۔ نئے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان تعارفی سیشن ختم ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی IMF مشن کو بریفنگ۔ حکومت آئندہ مالی سال میں اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے گی، بیرونی ادائیگیاں بلا تاخیر کی جائیں گی۔ وزارت خزانہ اور IMF میں اتفاق۔ پاکستان کی IMF کو معاشی اصلاحات کا عمل برقرار رکھنے کی یقین دہانی۔ IMF کی جانب سے گزشتہ پروگرام کے دوران معاشی اصلاحات کی تعریف کی گئی۔ بجٹ پر وزارت خزانہ اور IMF وفد نے ملاقات میں اہداف اور مذاکرات کا دائرہ کار طے کر لیا ہے۔ اور اب ایک اچھی خبر ہے، پیٹرول 13 روپے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ 15 مئی کو ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل 6.85% سستا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی ان قیمتوں کے اثرات پڑنے کے امکانات ہیں۔ اسی وجہ سے پیٹرول 13 روپے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز دی گئی ہے، لیکن اس کا حتمی فیصلہ 2 دن بعد ہوگا۔ گندم خریداری اسکینڈل پر وزیراعظم شہباز شریف کا ایکشن۔ MD پاسکو اور جنرل مینیجر پروکیورمنٹ کو معطل کر دیا۔ وزیراعظم کا پاسکو سٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا حکم۔ 4 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی شفاف خریداری کی ہدایت جاری کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ کسانوں کی خوشحالی کے لیے اقدامات کریں گے۔ وزیراعظم کی کسان کے معاشی تحفظ کے لیے اجناس کی انشورنس یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ مخصوص نشستوں سے متعلق ایک اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اور صوبائی اسمبلیز میں تمام اضافی مخصوص نشستیں معطل کر دی ہیں۔ قومی اسمبلی میں 3 اقلیتوں کی رکنیت معطل کی گئی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے 21 مخصوص اراکین کی رکنیت معطل کی گئی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 38 قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم پر اتفاق کی رائے۔ 27 قائمہ کمیٹیاں حکومت اور ان کے اتحادیوں کے حصے میں آ گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت 11 کمیٹیاں اپوزیشن کے حصے میں آئیں۔ قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اور ممبران کے لیے پارلیمانی جماعتوں کے چیف ویپ حکومتی چیف ویپ کو نام دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شرجیل اینا میمن کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف زیادتیات پر مبنی مہم چلائی گئی، صحافیوں کو مثبت انداز میں تنقید کرنی چاہیے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کوئی احسان ہمارا فرض ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہر دور میں اپنے لیے نہیں بلکہ ملک کا سوچا۔ بولے آزادی صحافت بڑا چیلنج ہے، تنقید برداشت کرنا آسان نہیں۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی زیادہ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ آج تو میں ایز اے انفارمیشن منسٹر شاید دے رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی دعوت تب دی گئی تھی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور میں نہ ایم پی تھا، منسٹر تھا، نہیں بھی تھا۔ میں اس بارے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس وقت آپ کو پتا تھا کہ کیئر ٹیکر کا انفارمیشن منسٹر کوئی اور ہے، لیکن پھر بھی حیدرآباد پریس کلب نے کہا کہ نہیں جی شرجیل میمن صاحب ہی آ کے بانٹیں گے ہمارے ہیلتھ کارڈ، اور تب تک وہ ویٹ کرتے رہے۔ اس پہ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ اسے کہتا ہے کہ جی آپ کرسی پہ ہیں یا نہیں ہیں، عزت کرسیوں کی نہیں ہوتی ہے، پوسٹ کی ویلیو نہیں ہوتی، ویلیو اس انسان کی ہوتی ہے، اس کے اخلاق کی ہوتی ہے، اس کے رویے کی ہوتی ہے۔ تو اس پہ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ جہاں تک صحافیوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آج ہم گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے جو گرانٹ کے چیک تھے یونین آف جرنلسٹ کے لیے، پریس کلب کے لیے، وہ دے رہے ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں یہ کوئی احسان نہیں ہے سندھ حکومت کا یا پیپلز پارٹی کا، کوئی ہم احسان نہیں کر رہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ، پورے ملک میں مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وفاقی حکومت نے حساس اور خفیہ معلومات کی غیر مجاز تشہیر کا نوٹس دے لیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خفیہ دستاویزات کی کھلے عام نمائش کا سخت نوٹس دیا۔
खुफिया मालूमात और दस्तावेज़ात की तशहीर करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला हुआ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशखीस का नोटिस दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेज़ात की खुलेआम नुमाइश का सख्त नोटिस लिया गया है। अहमद मंसूर नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? देखिए, जो वज़ीर दफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये मालूमात शेयर की हैं और उसमें उन्होंने बताया है कि जो वफाकी हुकूमत है उसने हसास और खुफिया मालूमात की जो गैर मजाज तस्वीर है उसका नोटिस लिया है। जो खुफिया मालूमात और दस्तावेज़ात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वज़ीर दफ़ा का ये कहना था कि इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्त और ब्रादर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुँच सकता है, जिस पर वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएँ। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि खुफिया मालूमात दस्तावेज़ात को अफशा करने या फैलाने में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा मियां नवाज शरीफ को इरसाल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए और मियां शहबाज शरीफ ने ये इस्तीफ़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इरसाल भी कर दिया है। पिछले चंद दिनों से ये इत्तला थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालेंगे और उससे पहले ये एक अहम डेवलपमेंट, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की सदारत संभालेंगे और उससे पहले ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उन्होंने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ राव दिलशाद से। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। उसमें नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी का सदर बनाने के हवाले से करारदाद भी पास की जा चुकी है, जबकि 28 मई को जो मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाया जा रहा है उसमें नवाज शरीफ को चूँकि दोबारा सदर बनाने के हवाले से जो दोबारा सदर मुंतखब किया जाएगा, तो इसी हवाले से आपको बताएं कि ज़राए ने कंफर्म किया है कि अब जब वो पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, शहबाज शरीफ और पार्टी कायद को अपना इस्तीफ़ा भी इरसाल कर चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हमें अपडेट कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया और शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इरसाल कर दिया है। एक अहम इजलास होने जा रहा है नून लीग का, जो पहले 11 मई को होना था लेकिन अब 28 मई को होगा, जिसमें इत्तलात यही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार दोबारा पार्टी की सदारत संभालेंगे। उससे पहले ये अहम डेवलपमेंट हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और अब 28 मई को एक अहम इजलास होगा मुस्लिम लीग नून का, जिसमें इत्तलात यही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार दोबारा मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से अब ये मनसब संभालेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने वजारत इत्तलात पंजाब के स्मोक केस की समाअत बारे रिमार्क्स पर इजहार नाराज़गी किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वज़रा के पास कहने को और बहुत कुछ है, अदालत बारे बयानबाजी से गुरेज करें। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिल की पॉलिसी माहौलियाती अंसर मद्देनज़र रखकर मुरतब करने की हिदायत भी जारी की। मलिक अशरफ से तफसीलात जान लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक केस के मुतल्लिक सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की जानिब से अदालती रिमार्क्स पर तबसरे के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है, जिसमें एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद काजी अदालत के रूबरू पेश हुए हैं और जस्टिस शाहिद करीम ने सूबाई वज़ीर इत्तलात की जानिब से अदालती रिमार्क्स पर सख्त इज़हार नाराज़गी किया है और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं कि वज़रा के पास कहने को और बहुत कुछ है, अदालत के बारे में रिमार्क्स ना दे। अदालत का मज़ीद ये भी कहना था कि गुज़श्ता समाअत से अदालत ने मोटरसाइकिलों की तस्लीम के हवाले से रिमार्क्स दिए थे और जिससे सूबाई वज़ीर इत्तलात ने तबसरा किया। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि जो तलबा हैं उनको मोटरसाइकिलों की नहीं बल्कि बसों की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
क्रिकेट अपडेट आपसे शेयर करें। गुज़िश्ता रोज़ आयरलैंड को दूसरे T20 में पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सबसे ज़्यादा 45 T20 मैचेस जीतने पर कप्तान बाबर आजम को एक शर्ट पेश की है और 300 विकेटें मुकम्मल करने पर फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को भी एक शर्ट दी गई है। चेयरमैन PCB ने दोनों खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन ब्रायन से मुलाकात हुई। चेयरमैन क्रिकेट आयरलैंड ने मोहसिन नकवी का भरपूर खैर मकदम किया। चेयरमैन क्रिकेट आयरलैंड ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को आयरलैंड की टीम की शर्ट और कैप का सुवेनियर पेश किया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक की वुमेंस क्रिकेट टीम्स के दरमियान भी सीरीज करवाने पर इत्तेफाक किया गया। चेयरमैन क्रिकेट आयरलैंड ने कहा कि आयरलैंड की क्रिकेट टीम अगले बरस अगस्त और सितंबर में पाकिस्तान आएगी। वुमेंस क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का भी जल्द जायजा लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पाकिस्तान में इनकाद खुशाइन है। पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने दौरा आयरलैंड के लिए बेहतरीन इंतजाम पर चेयरमैन क्रिकेट आयरलैंड का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक तमाम टीम्स के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। आयरलैंड में पाकिस्तानी टीम को बहुत सपोर्ट और प्यार मिला है। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से साबिक कौमी कप्तान शाहिद खान आफरीदी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स के मंसूबों पर बातचीत हुई। इस्लामाबाद में क्रिकेट के फ़रोग और स्टेडियम के क़याम के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से साबिक कौमी कप्तान शाहिद आफरीदी ने मुलाकात की है। इंजीनियर और डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर है। पहली दफ़ा पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में दाखिला टेस्टों के लिए मुफ्त तैयारी करवाने का फैसला किया गया है। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ इमरान यूनुस से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद जो तलबा है उनके लिए अच्छी खबर है कि अब MD कैट और ECAT की मुफ्त तैयारी जो है वो कराई जाएगी। पंजाब के 90 सरकारी कॉलेजेस में पहली दफा दाखिला टेस्टों के लिए मुफ्त तैयारी करवाई जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन ने इब्तदाई तौर पर 90 कॉलेजेस का इंतखाब किया है और एक कॉलेज में 5 ट्रेनर्स जो हैं वो रखे गए हैं। मजमूई तौर पर 450 ट्रेनर्स को हायर एजुकेशन जो है वो हायर करेगा, क्योंकि फी ट्रेनर 1 लाख रुपया मुआवजा भी दिया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन ने 4.5 करोड़ रुपए इस पर्पज के लिए मुख्तस किए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू ख़ानदान समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। साबिक अरकान कौमी असम्बली खुरम वट्टू, रुबीना शाहीन वट्टू और साबिक रुकन पंजाब असम्बली मौज़म वट्टू, जहां आरा वट्टू और आमना कसूरी भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है, राव हसन अली से जानते हैं। जी हसन, बताइए। जी बिल्कुल, बिलावल हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू ख़ानदान समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में मियां मंजूर वट्टू, साबिक अरकान कौमी असम्बली खुरम वट्टू और रुबीना शाहीन वट्टू शामिल हैं, जबकि साबिक रुकन पंजाब असम्बली मौज़म वट्टू, जहांरा वट्टू और आमना कसूरी भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वट्टू फैमिली को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा, जबकि इस मुलाकात के मौके पर राजा परवेज़, अशरफ, शहजाद सईद चीमा और चौधरी सजादुल हसन भी जो हैं वो मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और किरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जनूबी पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मुल्तान से मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं हसन मलिक से। हसन, आगाह कीजिएगा। शहर और गिरदोनवाह की अगर मौसम की बात करें तो जनूबी पंजाब भर की तरह मुल्तान शहर में भी गर्मी की शिद्दत में नुमाया हद तक इजाफा देखने को आ रहा है और मौसम एक दम से गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी की शिद्दत बरकरार थी। हीट वेव और हीट स्ट्रोक जो थी उसके खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे, लेकिन अगर आज के मौसम की बात करें मुल्तान शहर के तो आज सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। आज का दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन शहर का 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और इस वक्त मुल्तान शहर का दर्जा हरारत
38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। यानी पीक आवर्स हैं, पीक आवर्स में गर्मी की शिद्दत में नुमाया हद तक इजाफा देखने को आता है। लेकिन मज़ीद साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में नुमाया हद तक इजाफा देखने को आएगा। यानी गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले भी मुल्तान शहर का दर्जा हरारत 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था और अब भी ये कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते भी 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाएगा, मगर वो फील्स लाइक 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होगा। तो गर्मी की शिद्दत आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसी के साथ ही तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी जब घरों से बाहर निकलें तो अपने सरों को ज़रूर ढांप कर निकलें, एहतियाती तदाबीर का दामन जो है वो अपने हाथ से हरगिज़ ना जाने दें। साथ आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में नुमाया हद तक इजाफा देखने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जी, और अपडेट करेंगे आपको। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मान लिए हैं। हुकूमत ने बिजली और आटा सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 20 किलो आटा 1000 रुपये में मिलेगा और 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट मिलेगी। ये है आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ैसले किए गए हैं। उसके मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो रिहायशी हैं जिनको आटा मिलेगा 20 किलो का आटा जो थैला है वो 1000 रुपये का मिलेगा, और जो बिजली का यूनिट होगा 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर बिजली का जो फ़ी यूनिट चार्ज उनको किया जाएगा वो 3 रुपये चार्ज किया जाएगा।